Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from DRDO. Yes, what you need to do, you need to visit the official website drdo.gov.in. और जब आप यहाँ आएंगे तो here you can see in the on the home page only there is an option for the vacancies. तो vacancies में यहाँ आपको दिखाई देगा ये रहा recruitment RCI Hyderabad. Once you will click here, so you will go to that home page also of this specific recruitment. View more. All right, so here we are having a recruitment which is from RCI Hyderabad invites application from eligible candidates for the position of research associate and JRF. right, अब जानते हैं बहुत सारी बार, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीआरडीओ में जीआरएफ की जो वैकेंसीज है वो बहुत फ्रीक्वेंटली निकलती रहती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. राइट, सो यहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है. फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 अगस्त से. लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 13 सितंबर है. ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये डायरेक्ट वॉक इन है, तो वी विल गो फॉर दिस वन. तो एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू का. तो ये रहा. हियर वी आर हैविंग what offline applications, what they are asking offline applications are invited from young meritorious and motivated individuals of Indian nationals who are having inclination towards research in cutting edge technology. ठीक है जी. Applications are to be submitted on the prescribed format of for the selection and appointment in the following category. क्या क्या category है ये रहा. Okay, so here they are having first research associate RA on temporary basis for a period of 2 years only, and JRF junior research fellow on temporary basis initially for a period of 2 years, may be upgraded to SRF means senior research fellow for 1 year and extendable to another 1 year as SRF. ठीक है, now यहाँ इन्होंने दिया है डिटेल्स. so requirements and detail of vacancies of the in the various discipline are mentioned here. so they have first of all electronics, electrical, CSE, mechanical, physics. 2 vacancies they have here for the research associate, that is RA only. if you are talking about the JRF vacancies for the junior research fellow, then they have electronics and communication engineering 5, electrical and electronics engineering 3, computer science and information technology 2, mechanical engineering 5, aeronautical and aerospace 2, okay, chemistry 1 and metallurgy 1. okay, so they mention here for the GRF as well, last date for submitting will be 30 days from the date of the publication of this advertisement. तो मतलब हम ये मेंशन कर रहे हैं कि 14 अगस्त को ये पब्लिश हुआ था, तो आपके पास 14 सितंबर तक का टाइम है. ठीक है, now here they mention here डिसिप्लिन इज स्पेशलाइजेशन फॉर द आरए. तो आरए की बात हम पहले ही कर चुके हैं. कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपके पास में क्या है, इफ यू आर हैविंग पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, तो अप्लाई कर सकते हो. या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एमटेक आपके पास है कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस. क्योंकि देखो जो रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस से चाहिए ही चाहिए होता है. ठीक है, और फर्स्ट क्लास एमटेक हो या फिर ट्रिपल ई में तो भी अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट क्लास एमटेक हो ईसी में तो भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नाउ देन फिजिक्स के लिए भी यहाँ मेंशन किया है. लेट्स टॉक अबाउट फॉर दिस वन. ठीक है, अपर एज लिमिट 35 ईयर है फॉर रिसर्च एसोसिएट के लिए. हम बात करते हैं डायरेक्टली किसके लिए? जेआरएफ के लिए. तो जेआरएफ में कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है, यहाँ इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर भी लिखा है. किसके लिए? रिसर्च एसोसिएट के लिए. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो. ऑनलाइन ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर द जेआरएफ. जेआरएफ के लिए फर्स्ट क्लास बी बीटेक डिग्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए. किसमें? जिस डोमेन में आप फिल कर रहे हैं उसमें. सो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलॉजी विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड, तो जेआरएफ में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बी बीटेक, ओके, प्लस वैलिड गेट स्कोर कार्ड. ऑलराइट, फर्स्ट क्लास मतलब 60% चाहिए ही चाहिए. या फिर फर्स्ट क्लास बी बीटेक इसमें हो और एमई एमटेक हो. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, मतलब बी बीटेक एमटेक दोनों है, तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री हो तो भी गेट के बेसिस पे कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, दे मेंशन हियर क्लियरली. ऑलराइट, नाउ इट इज आल्सो सेम टू सेम
ओके, नाउ हियर फेलोशिप विल बी इनिशियली अवॉर्डेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेस्ड ऑफ योर परसेंटेज ओनली, दैट इज क्लियरली मेंशन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हियर इसमें भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिल करना है। सो आई थिंक दे अटैच्ड हियर द फॉर्म आल्सो, जो आपको फिल करना है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको फिल करना है, पूरा डिटेल्स वहां मेंशन की है इन्होंने, कहाँ और किस एड्रेस पे करनी है, ये भी यहाँ इन्होंने बताया है। देखो